We really have a pleasure today to have Dr. Sagar from AIIMS Trauma Center, and she will be talking about all the things that you can do when you're panic and all, or especially in last year. Thank you, Dr. Panda, for coming and so we'll just pick up after this one. for our meeting and science question. So I also try to wind it up. We'll have a discussion. So over to ma'am now. First in disaster. Thank you so much. And it is always a pleasure to be with people who are not actually the patients or the doctors. So, हमेशा डॉक्टरों से और मरीजों से घिरे रहने से you always need a break, and you always need an environment where we can talk of something different, which is so very relevant. And before we start, I want a quick introduction so that at least I know that who are the people. So we start quickly. From? And your background? We have people from IGNC, some students from Delhi University, and curators of museums. Okay, so everybody has that same kind of a background. Okay. So I'm from media management. I cover the Ministry of Culture. Okay, fine. And also health everything. Okay. Anyone else wants to give a different introduction, please? So no one is paramedic. No. No one is from any disaster response team or member of state disaster management or anything. Okay. Have you ever been exposed to such kind of this thing, that what first aids are required? Okay. कितने लोगों ने डिजास्टर होते हुए देखा है? कितने लोग किसी के सामने किसी को हार्ट अटैक पड़ा हो, किसी के सामने कोई रोड क्रैश होते हुए देखा हो, किसी ने किसी पेशेंट को जलते हुए देखा हो, या खुद ही जल गए हो कई बार छोटे मोटा जलना तो अक्सर घरों में होता रहता है. ओके. एंड एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज? यू आर ओके विद? ओके, फाइन. So basically, what is required is, and why you all are here, and the part of this training program is basically preparedness. If we are prepared for anything, then obviously our plans will succeed and we will also succeed. So most important thing is preparedness, and we all need to be prepared for, even in this classroom also. हम लोग बैठे हैं अचानक से, somebody might have any syncopal attack, somebody may just faint, and somebody may just lie down. Just last week only, we were having our class on radiology, and the radiology faculty who was supposed to take a class at 9 o'clock in the morning. सुबह वो आराम से 3 किलोमीटर चल के आए, क्लास लेने के लिए तैयार हुए, एंड सडनली क्लास लेने से पहले ही सेड मेरे को कुछ चोकिंग हो रही है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, एंड सडनली ही स्टार्टेड स्वेटिंग. अचानक से उनको पसीना आने लग गया, एंड उनको कुछ नहीं पता चला. वी जस्ट मेड हिम लाई डाउन. हमने उनको लेटा दिया. लेटा के बाई चांस दिस हैपेंड इन दी हॉस्पिटल. हम उनको इमरजेंसी में लेके गए. थप किया तो सांस आ रही थी, छाती चल रही थी, सब कुछ हो रहा था. वी गॉट एन ECG डन. ECG में कोई बहुत कुछ आया नहीं उनका. We shifted into the cardiac care unit, and you won't believe it, this was a heart attack. And then after 2 hours, उनके stent पड़ गया, and within 15 days we joined back the hospital. So thankfully he was in a hospital environment, but supposedly this happens at other places. आपकी म्यूजियम है, वहाँ पे कोई visitors आए हुए हैं, suddenly some visitor just fall down. तो क्या करना है? तो एक अचानक से जो घबराहट हो जाती है, that what I should do. And if God forbid if anything happens slightly with me, and I am not a doctor, I don't have the subject which tells me about the patient body. तो अगर मैंने ऐसे दबा दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो मेरे दबाने की वजह से मर जाएगा, या अगर मैंने ज़्यादा जोर से दबा दिया क्या उसकी रिस्ट फ्रैक्चर हो जाएगा या पसलियाँ टूट जाएगी, तो क्या करना चाहिए? या अगर खून बह रहा है, मैंने कस के पट्टी बांध दी और उसका हाथ काला पड़ गया तो क्या होगा? Will somebody sue me? So all these things is an answer of just having been prepared and to attend such kind of classes wherein you are given an information कि उस समय क्या important है. उस समय हाथ काला पड़ना is not important. उस समय important है लाइफ बचाना.
शरीर में 6 लीटर खून में अगर 1 लीटर ऐसे ही करके बह जाएगा और आपने उससे कुछ पट्टी नहीं बांधी, प्रेशर नहीं अप्लाई किया, तो जब तक आप उसको अस्पताल में पहुंचाएंगे यू विल लूज द पेशेंट। या कोई पेशेंट को अगर इस तरह का कोई चोकिंग हो गई है, उसने कुछ खा लिया है, खाते खाते चोकिंग हो गई है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, शरीर ढीला पड़ रहा है, तो सिर्फ आपकी 2 थप्पी पीठ पे देने से जो है वो चीज बाहर निकल सकती है एंड पेशेंट पर्सन कैन बी अलाइव। And these life skills, you know, they are very important for everyone. चाहे वो स्कूल में बच्चे हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे कोई भी हो, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जो आपदा आती है वो कभी भी बिना बता के नहीं आती है। इसीलिए उसका नाम आपदा होता है कि वो बिना बताए आ जाती है सिर्फ। You know, it comes uninvited. The disaster and the emergencies, they just come uninvited. So that's why this kind of preparedness and planning is required, and we must have a plan and we must have some kind of training to attend these preparations. And what do we do? How we can do it? We can have classes like this. In most of the government organized programs these days, चाहे वो कोई भी मेला लगता है, जैसे दिल्ली में इंडिया गेट पे भारत पर्व लगता है, these kind of awareness talks are always planned, wherein the common public who is visiting these places, we are being trained, and these pictures show few of our students who go out in such melas and such areas wherein they train them how to give a CPR, how to move a person to a safe place. So everywhere these awareness and these training programs are being organized. The important thing is that everybody should take interest into participate in them. ये ऐसा नहीं हो कि मेरे को बोल दिया कि गवर्नमेंट ने बोल दिया या मेरे को मेरे हॉस्पिटल में मेरे मैनेजमेंट ने बोल दिया कि आप जाके अटेंड करो, आप गए, आपने आधा घंटा अटेंड किया, बाद में आप बाहर कैफेटेरिया में बैठे हुए। नो, you have to be serious about it and you have to attend it. Then for every place there should be an evacuation plan. Are we aware of the evacuation plan of this room? अगर यहाँ पे सडनली कोई डिजास्टर हो जाता है, क्या हमें मालूम है? जैसे हम पिक्चर हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले एक स्लाइड आती है जिसमें बताया जाता है कि these are the exit gates of this place, these are the staircases, आपको लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करनी है। So that kind of evacuation, आप चाहे म्यूजियम्स में है, वहाँ पे आपका जो evacuation plan है, that should be clearly displayed everyone. कि अगर कभी भी किसी भी वजह से स्टैम्पीड हो जाती है, लाइट चली जाती है, कुछ भी हो जाता है, where people have to rush. If there are old people, what is the mechanism for them? Are there adequate wheelchairs available? If somebody falls down, fails down, are adequate stretchers available for them? So that kind of evacuation plans are also required. जितने भी लोग पुराने हैं, जिन लोग who have reached 50s, they may be remembering कि दिल्ली में एक उपहार ट्रेजेडी हुई थी। There was a उपहार पिक्चर हॉल, फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, बॉर्डर पिक्चर रिलीज हुई थी, बॉर्डर काफी नेशनलिस्टिक पिक्चर थी, तो बहुत हाइट थी। Everybody was there for that show, and what happened was कि उसके बेसमेंट में कोई जनरेटर रखा हुआ था, which suddenly blasted. And nobody was aware of the evacuation plan. गलती से जो exit doors थे, they all were not open, and people became suffocated inside that hall. एक तो स्टैम्पीड हो रही थी, सबको बाहर भागना था, दूसरा सफोकेशन हो गया बिकॉज ऑफ फ्यूम, एंड तीसरा जो सबसे बुरी चीज हुई वो ये हुई कि उपहार पिक्चर हॉल इज वेरी नियर टू एम्स एंड सफदरजंग, हार्डली 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं दोनों अस्पताल। बट द ह्यूमर वॉज कि सब जल गए हैं, क्योंकि लगा कि जनरेटर फटा है तो आग लग गई है, सबको लगा सब जल गए हैं। जलने का मतलब है जले हुए अस्पताल में जाओ, and there is only one burn hospital there nearby, which was Safdarjung Burns Department. So all the 150 to 200 people were shifted to a single hospital, and no hospital can cater to so much of emergency at any point of time. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके यहाँ पे मान लो इस तरह कभी भी कोई दुर्घटना होती है, तो हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आप 10-10 के बैचेस में कहाँ पे उनको पहुँचा सकते हैं। Because those 200 people were shifted to a one place, they all got mismanaged and we lost almost 100 to 150 people in that accident. और जबकि वो कोई नहीं जला था, सबको सिर्फ सांस की प्रॉब्लम थी। What they all required was only oxygen, 100% ऑक्सीजन, जो कि किसी भी छोटे से छोटे नर्सिंग होम में अवेलेबल होता है। So this is only planning and thinking कि अगर हमारे यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो कौन से हमारे आसपास एरियाज हैं, कहाँ पे हमें लोगों को भेजना है। तो यू शुड हैव दैट म्यूचुअल एड एग्रीमेंट। ये जो लाइन है इसमें लिखी म्यूचुअल एड एग्रीमेंट कि आपको
ये नहीं है कि जिस दिन आपके पास हादसा हो आप उस दिन फोन करेंगे तो अगला बंदा आपको रिस्पॉन्ड करेगा. नो, ही विल नॉट रिस्पॉन्ड until unless you have spoken to him 2-3 times before. If you are aware that who is the medical superintendent of that particular nearby hospital, do I have a vehicle in my place, in my area where I work, which can shift these patients immediately to those places? मैं अपनी कार या अपनी टैक्सी में नहीं लेके जाऊंगा. क्या हमारे पास ऐसा कोई व्हीकल होगा उस टाइम पे? क्या उसका फोन नंबर अवेलेबल है जिससे कि मैं उसको पहुंचा सकूं? So these kind of evacuation plans and mutual aid agreements are required. Now coming on to the medical first aid, the hadsa has occurred. अब हम मेरे को क्या करना है? The aim is to save life, to prevent the worsening of medical conditions, to promote recovery and to help ensure safe transportation to the nearest healthcare facility. एक हम लोगों के दिमाग में एक धारणा होती है कि भाई कुछ भी हो जाए एम्स लेके जाइए, कुछ भी हो जाए सफदरजंग लेके जाओ, प्राइवेट में जाना है तो मेदांता जाइए, मैक्स चाहिए. नो, go to the nearest healthcare facility because time is of essence. जब भी मेडिकल एड की जरूरत होती है, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू एंश्योर कि जो भी नियरेस्ट डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो 2 बेडेड हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, चाहे 1 बेडेड नर्सिंग होम है, बट यू मस्ट टेक द पर्सन टू द नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी सो दैट द पर्सन गेट स्टेबलाइज देयर. वहाँ पे जो भी डॉक्टर होगा, अगर उसको लगा होगा कि इसको सांस की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन देना है, कोई आईवी कैनुला लगाना है, खून बह रहा है तो उसको पट्टी बांधनी है, वो सारा काम कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है वो उसको कर सकता है. So the important thing is in the medical first aid that what basic skills you have to perform, and second important thing is that you have to safely transport that person to the nearest facility. The response mechanism should be that who takes the command. ये बड़ा important होता है कि किसकी बात माने. So always you must have a monitor at your system. कि जब भी कभी ऐसा कोई इंसिडेंट होगा, I think these lectures must be being covered. So command, control, coordination, how to contain that area, continuity and capability. So these are certain clinical management हटा दीजिए because that is for the doctors to do. But ये सारे points हमारे दिमाग में रहने चाहिए that who is going to take command in that situation, who will decide कि कौन कहाँ जाएगा, किसको किस अस्पताल में भेजना है, किसको यहीं पे रोक के रखना है, किसको लिटा के रखना है, और किसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना. And you must know your capability, that who are the people who will respond in this scenario, because not everybody is capable of that leadership qualities or that leadership role, and you must assign the duties on a daily basis कि अगर आज की तारीख में कुछ होता है तो आज का रोस्टर ये है, कल का रोस्टर ये है, परसों का रोस्टर ये है, specifically for that medical aid, not for everything, only for the medical aid. Now all the other things, search and rescue, evacuation and definitive care will be taken by other people. In the medical response, the most important thing is triage. Does anyone know what is triage? Triage का मतलब क्या होता है? triage होता है जैसे घर में आप सबने छलनी देखी है, कभी भी कुछ होता है तो हम छलनी से छानते हैं. तो जब हम छानते हैं तो क्या होता है, बारीक चीज चली जाती है, मोटी चीज छलनी में रह जाती है. यहाँ पे भी triage का मतलब यही है. triage का मतलब है कि हमारे पास 100 लोग लेटे हैं, अब उसमें से हमें छान के उन लोगों को निकालना है जिनको सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है. So that is known as triaging. Triaging is to filter out the people who need your care, your expertise maximum. So it is very simple. जैसे अभी हम यहाँ पे इतने सारे 40-50 लोग बैठे हैं, मान लो यहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, and now I am the only doctor available here. I have to decide कि मेरे को सबसे पहले हॉस्पिटल किसको भेजना है. So what I will do is I will ask डॉक्टर अजिंदर की आप एक प्लीज एम्बुलेंस बुला दीजिए. इन्होंने एम्बुलेंस बुला दी. अब मैं उनसे बोलूंगी यहाँ पे जितने भी लोग उस ब्लास्ट में जो विक्टिम है, I will tell them that those who can run go to the ambulance. जो दौड़ के एम्बुलेंस में जाके बैठ सकते हैं वो सब एम्बुलेंस में बैठ जाइए. तो अराउंड 40 लोग, 40 में से यहाँ से 15-20 लोग होंगे जो कि खटाखट एम्बुलेंस में जाके बैठने की कोशिश करेंगे, नहीं तो एम्बुलेंस को पकड़ के खड़े हो जाएंगे कि सबसे पहले हम ही चढ़ के जाएंगे. What my role is that I am not going to pay any attention to them because they are green patients for me. Green are the walking wounded patients. जो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और मेरे कमांड को फॉलो कर सकते हैं कि मैंने बोला आप एम्बुलेंस पे चले जाइए, इसका मतलब उनका दिमाग काम कर रहा है. They are not unconscious. So these are known as green patients. Now those who still cannot go, अब यहाँ पे मेरे पास कितने रह गए, 15 तो चले गए वहाँ पे,
करीब मेरे पास 20 के करीब यहाँ पे लोग रह गए। अब उन 20 लोगों को आई विल आस्क देम कि दोज हु कैन हियर मी जस्ट रेज योर हैंड और रेज योर लेग। तो जो लोग कॉन्शियस हैं बट उनके हो सकता है हाथ में फ्रैक्चर हो गया हो, पैर में फ्रैक्चर हो गया हो, हिप पे फ्रैक्चर हो गया हो, वो मेरी बात सुन पा रहे हैं बट दे कैन नॉट स्टैंड, now they will raise their hand or they will raise their leg or they will try to make some gesture with their body so that I can understand कि ये लोग conscious हैं, oriented हैं. These people are known as yellow. These are yellow. Okay? जो कि हमारी बात सुन पा रहे हैं but they are not yet so stable कि वो दौड़ के एम्बुलेंस पे पहुंच जाए. Now there is a third category. अब इसके बाद करीब 15 लोगों ने ये कर लिया. अब 5 लोग ऐसे बचे हैं जो कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कुछ बोल नहीं रहे, मेरा जवाब नहीं दे रहे. आई हैव टू गो नियर टू ईच ऑफ देम और अब मैं उनके पास जाके देखूंगी और ये देखना है मेरे को कि क्या उन्हें कोई हरकत हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या उनकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, क्या उनकी छाती पे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, धड़कन हो रही है कि नहीं हो रही है, या कोई भी लाइफ साइंस ऑफ लाइफ उनमें है कि नहीं. सो फॉर मी दोज पेशेंट्स, दोज पीपल आर रेड. रेड आर द वन, लाल रंग तो वैसे ही सबको पता है खून का रंग है. So red are the people who require my utmost attention, and these 5 I will ask people to help me and to shift them to the nearest hospital through that ambulance. आप green को किनारे कर दीजिएगा, yellow को अभी लेटे रहने दीजिएगा, and those 5 you transfer to the nearest facility. So this is known as triaging. Red, yellow and green. आप किसी भी इमरजेंसी सेटअप में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे लोगों के हाथों में या तो बैंड लगे होंगे या वहाँ पे लॉबीज बनी हुई होंगी, उस पे लिखा होगा रेड, येलो एंड ग्रीन लॉबी. ओके, तो हॉस्पिटल और ट्रियाज इज ए डायनामिक फेनोमेना. डायनामिक इन द सेंस कि जो अभी रेड है वो हो सकता है वहाँ अस्पताल तक पहुँचते पहुँचते उसका सब सांस ठीक हो जाए, वो येलो बन सकता है, या जो येलो अभी है वो 15 मिनट बाद वो रेड बन सकता है. अभी तक उसको सांस आ रही थी बट हो सकता है 15 मिनट में वो डिटीरियोरेट हो जाए. तो दीज आर डायनामिक. अब हॉस्पिटल में पहुँच गए, हॉस्पिटल हैज टू डिसाइड कि इन 5 में से पहले किसको आईसीयू ले जाएं, किसको ऑपरेशन थिएटर ले जाए, किसको पहले ऑपरेट करना है. हॉस्पिटल विल डू इट्स ओन ट्रियाजिंग. ओटी में 4 पेशेंट पहुंच जाएंगे, अब ओटी वाले डिसाइड करेंगे सबसे पहले किसको ऑपरेट करना है. हु शुड बी ऑपरेटेड फर्स्ट. उसको सिर में चोट है, पेट में चोट है, पैर में चोट है. अगेन द ट्रियाजिंग विल हैपन. सो ट्रियाजिंग इज अ डायनामिक सिस्टम. So I think I am clear about triaging. So triaging is the first important thing which you have to understand whenever you are talking about the medical response. Then there are few patients whom you can treat or you can send to any hospital, but then there are certain people who need to be sent to a higher station. This slide is basically for the hospital to decide for the secondary triage. How many of you know ABCD? किसको को ABCD आती है? किसी को नहीं आती? सबको आती है. Okay. Everybody knows ABCD. A for Alert. With alert. A for apple. Okay. A for alert. Anything for A? ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते? Air. तो हमारी टर्मिनोलॉजी में A is for air. ओके. सांस नहीं ले सकते अगर हम, उसके बिना हम तुरंत मर जाएंगे. तो A is for air. B for ब्रीदिंग. एकदम से आ गया. B for ब्लड. और नॉन मेडिकल टर्म में क्या हो सकता है? हम लोग क्या पढ़ते थे बचपन में? बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल. बी फॉर बास्केट. बी फॉर बकेट. तो हेयर बी इज फॉर, एक बार हमारे को एयर मिल गई तो उसको बाद हमें सांस लेना है, तो बी इज हेयर फॉर ब्रीदिंग. तो बी फॉर ब्रीदिंग. सी, अब सांस भी ले लिया, सांस के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव? सर्कुलेशन. खून. अगर हमारा सारा खून बह जाएगा, खून ही नहीं रहेगा, we cannot survive. So C is for circulation. Circulation of what? Not water. Circulation of blood. So C is for circulation. तो कहीं पे भी किसी भी वजह से अगर हमारी बॉडी में सर्कुलेशन को प्रॉब्लम हो रही है, सर्कुलेशन को प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? Supposedly we get a cut here, there will be a lot of bleeding from here, so that will cause problem to the circulation. हमारी बॉडी में अंदरूनी चोट लग गई है, सर में चोट लग गई है, सर में ब्लीडिंग हो सकती है, छाती में ब्लीडिंग हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है. इनसाइड आर एब्डोमेन, एब्डोमेन को पेट बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गन्स हैं जिनको अगर चोट लग जाए तो वो टूट जाती है. इट कैन बी लिवर, इट कैन बी स्प्लीन, इट कैन बी किडनी, इट कैन बी इंटेस्टाइन, इट कैन बी यूट्रस, इट कैन बी ब्लैडर.
So these are certain organs inside the body which it gets hit. और यूजुअली क्या होता है कि अगर आप अचानक से सीढ़ियों पे गिर जाते हो, आपके इंस्टेंस में मैं वही चीज़ें बताऊंगी कि आप अगर इनसाइड एक प्लेस में म्यूजियम में या गैलरी की बात करेंगे तो हम सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्टैम्पीड हो सकती है या फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर आप गिरे हो और आपके साइड में रेलिंग लग गई है, तो साइड में अगर रेलिंग लग गई है, राइट साइड में लग गई है तो आपके लिवर को चोट पहुँच सकती है, आपकी किडनी को चोट पहुँच सकती है। लेफ्ट साइड में लग गई है तो आपकी स्प्लीन को चोट पहुँच सकती है। So those organs can rupture and you can bleed inside your body. So you can bleed inside your body because of these organs or because of the fracture. आपकी ये हड्डी टूट गई, ये हड्डी टूट गई, ये हड्डी टूट गई, तो उसकी फ्रैक्चर की वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। देन यू कैन ब्लीड। नॉर्मली हमारी बॉडी में कितना खून होता है? 6 लीटर। तो 5 to 6 लीटर एवरेज हमारी बॉडी में ब्लड होता है। If we are bleeding more than 1 to 2 liters, either because of fracture or because of the inside bleeding, we can go in a state of shock, and a person if not get a treatment within 2-3 hours, he may die. Okay. D is for Disability. D is for doll, D is for drum, and D here is for disability. What kind of disability? Is it physical disability? एक तो डिसेबिलिटी होती है कि आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो रही है कि आप चल नहीं पा रहे हो या कुछ और दिक्कत है, बट यहाँ पे जो डी है डिसेबिलिटी वो न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन, आपके सिर में कोई चोट लगी है जिसकी वजह से आप अलर्ट नहीं हो, आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। तो हेयर डी इज फॉर न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। हमारे को जो फर्स्ट एड में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और डी डिसेबिलिटी में एक और चीज़ आती है स्पाइन। हमारी जो स्पाइन है, अगर हमारी स्पाइन किसी भी वजह से चोट लगती है, और स्पाइन एक पूरी रीढ़ की हड्डी, आप लोगों ने डायग्राम देखा इस तरह से पूरी लंबी सी रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुदंड बोलते हैं उसको। तो अगर वो किसी भी वजह से अपनी जगह से आगे पीछे हिल जाती है या कुछ हो जाता है, तो अंदर उसकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे चारों हाथों पैरों को, बॉडी को सेंसेशन देते हैं। जो ब्रेन से हमारी नर्व्स आ रही होती है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दैट स्पाइनल कॉर्ड। अगर कुछ भी हमारे गले की रीढ़ की हड्डी में कुछ हो जाता है तो हमारे चारों हाथ पैर पैरालाइज हो सकते हैं। So that's why it is very important that we take care of our cervical spine. अभी हम आएंगे कि why cervical spine is so important. तो हमने क्या देखना है पेशेंट में? हम देखेंगे कि आपने कोई लेटा हुआ है, आपने जाके देखा उसकी छाती में मूवमेंट हो रही है कि नहीं। आपने अपने घरों में सबने देखा होगा, छोटे बच्चों को कई बार देखते हैं सो रहे होते हैं तो कैसे उनकी चेस्ट वॉल की मूवमेंट हो रही होती है ना, जब सांस ले रहे होते हैं तो चेस्ट वॉल की मूवमेंट। तो क्या चेस्ट वॉल की मूवमेंट हो रही है कि नहीं? आप पास में जाओगे, सांस की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, नाक के आगे उंगली रख के देखोगे कि हवा निकल रही है कि नहीं निकल रही है, एंड देन यू कैन सी पल्स। ना सबने सुना है हमारी पल्स होती है, तो एक पल्स है जो कि हम बड़े, आपने कॉमनली देखा होगा कि डॉक्टर जो होता है वो इसको पल्स को हाथ लगा के देखता है ना, तो जिसको कि नाड़ी भी बोलते हैं या पल्स बोलते हैं, है ना। तो वी ऑल शुड नो हाउ टू चेक दी पल्स, एंड वेरी सिंपल वे टू चेक योर पल्स इज रेज योर हैंड। कोई भी अपना राइट या लेफ्ट हैंड रेज करिए, उसको थोड़ा ऐसे ड्रॉप करिए, ऐसे ड्रॉप करिए। अंगूठे के साथ साथ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक हड्डी है, आप दूसरे हाथ के फिंगर से आप इस तरह से उसको बोन के अगेंस्ट उसको अंदर गड्ढे में डिप करने की कोशिश करिए, ऐसे करिए। जैसे मैंने पोस्टर बनाया बिल्कुल ऐसे पोस्टर बनाने की कोशिश करिए। कुछ फील हो रहा है आपको? कैन एवरीबॉडी फील? ऐसे देखो, ये अंगूठा है आपका, अंगूठे के साथ साथ नीचे आइए, यहाँ पे एक हड्डी है, इस हड्डी पे पहले करेंगे तो हड्डी फील हो रही है, हड्डी के साथ ही एक गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे में आप जोर से दबा के देखिए। आई होप एवरीवन कैन फील अ पल्स। तो अगर आप लोगों का ब्लड प्रेशर 60 से ऊपर है, यू कैन फील दिस। अगर आपने देखा कि जो जना वहाँ लेटा हुआ है उसकी ये वाली पल्स नहीं फील हो पा रही है, तो फिर आप एक दूसरी पल्स देखते हैं, वो गले में होगी, जिसको हम कैरोटिड पल्स बोलते हैं। कैरोटिड पल्स, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम भी है तो भी कैरोटिड पल्स फील हो जाती है। कैरोटिड पल्स फील करने के लिए क्या है, आप ऑपोजिट साइड में देखिए, ये एक मसल है जो बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाती है, वहाँ पे आप देखिए ना एक लाइन सी बन रही है, प्रोमिनेंस हो रही है। इसमें बीचों बीच आपकी ये चिन्ह है और ये पोर्शन है, इसके बीचों बीच जो जगह है वहाँ बीच में एक ऐसे जोर से फिंगर दबा के देखिए, या तो इसी हाथ से अपोजिट हाथ से। फील हो रहा है? जिस साइड आपने घुमाया ना उसी साइड देखो, अंदर की तरफ, इस तरफ को देखो। तो दिस इज कैरोटिड पल्स। अभी हम लोग जब हैंडसम करेंगे तो आपको
पेपर दिखा देंगे। तो दिस इज कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स जो होती है वो अगर आपका बीपी बहुत कम भी होता है तब भी फील होती है, बट अगर आपको कैरोटिड भी फील नहीं हो रही है, अब आप उसके टेस्ट पे आएंगे और आप उसकी छाती पे हाथ रख के देखिए, तो आपको दिल की धड़कन सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर वो भी नहीं आ रही है, नाउ इज द टाइम दैट यू हैव टू डू CPR। या पेशेंट की सांस की धड़कन नहीं चल रही है, इसका हार्ट जो है वो सो गया है, अरेस्ट में चला गया है, आई हैव टू रिवाइव दैट हार्ट एंड फॉर दैट यू हैव टू डू अ CPR। एनीबडी नो द फुल फॉर्म ऑफ CPR? आजकल तो बहुत CPR चलता है, यूट्यूब पे गाने चलते रहते हैं CPR। Cardiopulmonary. What is that word? कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन। तो रिसर्सिटेशन मतलब रिवाइव करना किसी को, और कार्डियो मतलब हार्ट। कार्डियो इज हार्ट एंड पल्मोनरी इज लंग। बेसिकली हमारी बॉडी में जो भी कुछ हमारे जो ऑक्सीजन जा रही है, हम कहते हैं ना गंदा खून जाता है, वो लंग्स उसको साफ करते हैं और साफ खून हार्ट को दे देते हैं। तो दिस इज बेसिकली दे वर्क टुगेदर, आवर हार्ट एंड लंग दे वर्क टुगेदर टू गिव अस अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो हार्ट एंड लंग्स मिलके उसको काम को करते हैं। तो दैट्स व्हाई फॉर वर्किंग ऑफ अ हार्ट, लंग्स का ठीक होना जरूरी है, और लंग्स के ठीक होने के लिए या लंग बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने के लिए हार्ट का ठीक होना जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कार्डियो पल्मोनरी रिसर्सिटेशन और CPR। ओके, तो ये आपने देख लिया 3 चीजें। ये छोटा क्विकली मैं एक डायग्राम से दिखाना चाहती हूँ आपको कि अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये नाक दिखाई दे रही है, आपने अपनी नाक देखी, नाक के बाद गले में चले जाते, फिर आपको एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हमारे गले से 2 पाइप जाते हैं, एक फूड पाइप बोलते हैं और एक विंड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप में खाना जाता है और विंड पाइप में ऑक्सीजन जाती है। विंड पाइप जो होता है वो हमारा जाके मिलता है, साइड में जो 2 पर्पल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो होते हैं हमारे लंग्स। तो हमारा जो विंड पाइप है वो ऑक्सीजन लेके हमारे लंग्स को देता है, और लंग्स फिर उस एयर को लेते हैं, और एयर को फिर उसमें अभी तो वो ऑक्सीजन रिच एयर है और उसको साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वाली भी एयर मिलती है, तो वो हार्ट के साथ उसको फिल करता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज आपको देखते हैं कि उसके किनारे ब्राउन ब्राउन से आपको लाइनिंग दिख रही है। तो वो जो ब्राउन लाइन होती है वो हमारी पसलियां होती हैं, रिब्स होती हैं। तो हमारी रिब्स जो है हमारे लंग को बचा के रखती हैं। किसी भी वजह से ये पसलियां टूट जाएं, गिरने की वजह से या धक्का मुक्की में या मारामारी में या गोली की वजह से, तो हमारे लंग को डैमेज कर सकती है। और इसकी वजह से तो अगर हमारे मुंह में कुछ फंस जाए, ब्लीडिंग हो जाए, दांत फंस जाए, चोटिंग हो जाए, तो हमारी एयर नहीं जा पाएगी अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एयरवे ब्लॉक हो गया। और अगर किसी भी वजह से पसलियां टूट रही हैं, जल गए हैं, हमारे जो लंग्स हैं उनको ना वो खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं। हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, हम सांस छोड़ते हैं तो लंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया अगर किसी भी वजह से यहाँ पे इस सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो वो नहीं हो पाता, तो हमारी ब्रीदिंग को प्रॉब्लम हो जाती है। इस डायग्राम से मैं जस्ट आपको ये एक आइडिया देना चाहती थी। नाउ दिस इज पिक्चर शोइंग कि हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो कैसे उनको CPR की ट्रेनिंग, या जब हम CPR देते हैं तो हमें साथ में ऑक्सीजन भी देनी होती है, मुंह से मुंह ब्रीदिंग भी देनी होती है, एयर भी देना होता है। तो आपने नाक को पिंच करा, और नाक को पिंच करने के बाद आपने मुंह से भी उसको सांस दी, ऑक्सीजन दी, और उसके बाद फिर आप उसको CPR करेंगे। अभी हम मैनिकिन पे दिखाते हैं आपको। अगर हमने उसका एयरवे देख लिया तो उसके बाद हमें देखना है कि उसका कहीं से वो ब्लीड तो नहीं करना। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें प्रेशर लगाना है। किसी भी चीज से आप प्रेशर लगा दीजिए, आपको जो भी मिल रहा है उस समय आपको जो है ना ये नहीं देखना कि वो साफ होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए, बिकॉज इस समय जान पे बनाई है। वी आर नॉट वरीड अबाउट द इन्फेक्शन। आपको साड़ी का टुकड़ा मिल रहा है, रुमाल मिल रहा है, तौलिया मिल रहा है, शर्ट मिल रही है, जो भी चीज मिल रहा है उसका आप गोला बनाइए, यू अप्लाई अ प्रेशर। यहाँ प्रेशर लगा दीजिए, यहाँ प्रेशर लगा दीजिए, यहाँ प्रेशर लगा दीजिए, जहाँ में चोट लगी है वहाँ प्रेशर लगा दीजिए। डोंट लेट ब्लड कम आउट ऑफ द बॉडी, अप्लाई प्रेशर। और प्रेशर लगे लगे आप उसको अस्पताल में या डॉक्टर के पास पहुँचा दीजिए। तो ब्लीडिंग कंट्रोल का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट यू हैव टू अप्लाई प्रेशर। एक तरीका है कि आपने डायरेक्ट प्रेशर लगा दिया, आपने उस पर पट्टी बांध दी, और दूसरा एक और तरीका है कि आपने यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक या कोई रबर टाई लिया और रबर से कस के उसको टाई कर दिया, और जो कि टूटने के, उसको बोलते हैं टूटने के, आपने कस के यहाँ पे कुछ भी बांध दिया। अगर हाथ की बात करें तो यहाँ पे कुछ बांध दिया, पैर में ब्लीडिंग हो रही है तो पैर में बांध दिया। कई बार लोग बोलते हैं सांप काट लेते हैं, तब भी आप उसमें ऊपर की तरफ बांध देते हैं। तो आप कस के उसको बांध लीजिए
45 मिनट तक आप अगर इसको बांध के रखेंगे और 45 मिनट बाद हम इसको खोल देंगे तो उससे आपके हाथ डैमेज होने के चांसेस नहीं होते। बट अगर हमने ये जो बांधा है इसको 2-3 घंटे तक इफ यू कंटिन्यू टू लिव इट देयर देन यू माइट लूज योर हैंड। बट इवन देन मान लो कोई जना बहुत ब्लीड कर रहा था, मान लो उसका हाथ ही कट गया था यहाँ से, आप रेलवे में जा रहे थे कहीं पे, आपने देखा कि किसी जने का हाथ कट गया किसी भी वजह से, वहाँ पे खूब खून बह रहा है, तो आप पट्टी बांध के नहीं रोक पा रहे हैं उसको, यहाँ पे आप कस के कुछ भी रबो बैंड बांध लीजिए, तो somebody might tell you कि अरे तुमने इतनी कस के बांध दिया उसका तो हाथ ही काला पड़ गया। So here we are saving the life of the person and not the limb. limb मतलब body का part. So we always say that life before the limb. जान ज्यादा जरूरी है बजाय कि हाथ या पैर। हाथ या पैर नकली आ जाते हैं बट जान नकली नहीं आती। So that time you have to control the hemorrhage, you have to control the bleeding. You might lose the limb. That is it. So apply pressure. Okay, we'll switch to hand from Jyoti. So you can assemble your hand. तो कहीं पे भी ब्लीडिंग है, हाथ में हो रही है, कहीं पे भी हो रही है, आप उस पर अप्लाई करिए प्रेशर। एक तो इस फोटोग्राफ में मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ऊपर जो लड़का दिख रहा है उसके पेट में एक रॉड चली गई है। तो ऑल्दो आपके सर्कमस्टांसेस में इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, बट आई जस्ट वांट टू से कि अगर कोई भी नुकीली चीज किसी के चली जाती है, कान में चली जाती है, नाक में चली जाती है, आँख में चली जाती है, बॉडी में चली जाती है, डोंट ट्राई टू पुल इट आउट, डोंट ट्राई टू पुल इट आउट, बिकॉज जो चीज अंदर गई है वो अपने साथ किसी ना ऑर्गन को भी डैमेज करते हुए गई है, बट उससे जाके अभी के लिए ब्लीडिंग को स्टॉप करके रखा हुआ है। इट हैज एक्ट एज अ प्लग, द मोमेंट यू कैन पुल इट आउट इट विल स्टार्ट ब्लीडिंग एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट ब्लीडिंग। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट लेट दैट प्लग रिमेन देयर, take the person to the hospital and let the hospital doctor remove it under the controlled environment. This is how you have to apply a pressure bandage जहाँ पे भी चोट लगी है। We will go on to the CPR. I will demonstrate on you that how the CPR has to be done. The thing is that जिसको भी CPR देना है उसको आपको जमीन पे लेटाना है, फ्लैट सरफेस पे लेटाना है, क्योंकि the person